Hello students. Uh, Till now we studied Monday morning, Rajam and Money, Swami's grandmother, what is a tale in Swami and Friends. Today we'll start our 5th chapter, Father's Room. Okay. See there, first para. It was Saturday and Rajam had promised, yes, up to himself go and ask. Okay, so explanation of these paras. The day was Saturday and Rajam was to come to Swami in the afternoon of Saturday. Swami was very happy that day and excited also. Now there was a question in front of him where he was to entertain him. Firstly, he thought of his room. Means in actual it was not his own room, his father's dressing room, and his father used to come there to dress and undress. Then again a thought came into his mind that his father would be at court when his friend would come. He felt relief on thinking that. He cleaned his table and arranged his books neatly. His father was surprised on seeing that and he praised him also. Then Swami went to his granny and asked her if he asked her whether she remembered, yes, whether she remembered Rajam or not. Granny affirmed that she remembered that boy who was very strong but never passed. I think she was confused. Okay, she got confused in Rajam and Money. Swami reminded her that he was not Money, he was Rajam. He told that Rajam was the son of superintendent of police and killed the tigers in the forest while camping with his father. Now Granny remembered and expressed gladness that he was coming to their house. Swami told her in a very rude manner not to come in front of his friend, as she was very old and he did not like to make her meet to his friend. Granny did not mind his rudeness because of affection towards her grandson. Then Swami went to his mother. She was squatting, means sitting. She was sitting before a cutter with a bundle of plantain leaves by her. Means she was cutting some vegetable. He asked her to prepare something very nice, very fine and sweet dish as Rajam was coming to their house that day. He also instructed her to make a very good and hot coffee. Then he said to his mother to ask father for his room for an hour or two. Mother refused to do so and said to him to ask himself his father. He instructed his cook also to wear a new clean dhoti and kurta. Okay, these instructions he gave to his mother, his granny and his cook. Now better explanation in Hindi. सैटरडे आफ्टरनून का समय होता है और उस दिन राजम ने प्रॉमिस किया था कि वो स्वामी के घर पर आएगा. जनरली फ्रेंड्स रहते हैं तो एक दूसरे के घर पे आना जाना लगा होता है इन लोगों का. पहली बार में स्वामी और मनी गए थे उसके घर. अब राजम आ रहा था स्वामी के घर पर विजिट करने के लिए. बच्चे होते हैं ना, जाते हैं एक दूसरे के घर खेलने कूदने, घर कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, देखने मिलने उत्सुकता होती, क्यूरियोसिटी होती है और कुछ फिर मस्ती धूम भी करनी होती. जैसे आप लोग भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, है ना, हम लोग भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, उसी टाइप से. नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था उसके सामने स्वामीनाथन के
कि भाई इसके घर जब मैं गया था तो कितना अच्छा घर था उसका और कितने अच्छे से उसने इनको एंटरटेन किया था और कितने सारे खिलौने थे। तो जनरली ये होता है ना, बच्चों को अनुकरण करने की वो होती है, कॉपी करने की आदत होती है। बच्चे ज़्यादातर जैसा देखते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। अब उनको उसको इतना अच्छा ट्रीट किया गया था राजम के घर में, राजम के द्वारा, तो यहाँ पर उसको भी लगता है कि मैं भी राजम को अच्छे से एंटरटेन करूं। लेकिन अब उसके सामने समस्या ये थी कि मैं कहाँ पर उसको एंटरटेन करूं। पहले तो उसको दिमाग में आता है कि वो अपना रूम, अब उसका रूम जो था जहाँ पर उसके पापा चेंजिंग रूम था, पापा का ड्रेसिंग रूम था, वहाँ पर आते जाते रहते थे, ठीक है। तो उसे लगता है कि यहाँ तो फादर बार बार ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए आएंगे जाएंगे। फिर उसको ध्यान में आता है कि अरे उस दिन तो फादर कोर्ट में रहेंगे, कचहरी में रहेंगे। ये सोच के वो राहत की सांस लेता है। बच्चों को ऐसा लगता है ना थोड़ा कि जब फ्रेंड्स आए तो वो लोग आपस में ही अकेले में ही बात करें, है ना, मम्मी पापा या कि घर में किसी बड़े का इंटरफेरेंस नहीं हो। क्योंकि ऐसे में जो आया हुआ बच्चा होता है या आए हुए जो लोग होते हैं वो थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, और ये वो चीज़ नहीं चाहता था। तो यहाँ पर उसको रिलीफ होता है ये सोचकर कि पिताजी उस दिन उनके कोर्ट में रहेंगे। अब उसने अपनी वो जो टेबल, जहाँ पर वो रूम, मतलब उसका रूम तो था नहीं कोई पर्टिकुलर, उसकी एक टेबल हुआ करती थी जिसपे हमने देखा हीप्स ऑफ उसकी अननेसेसरी थिंग्स पड़ी हुई होती थी, है ना। अब यहाँ उसका भी थोड़ा सा कॉन्शियस जागता है जब वो इतने अच्छे राजन के नीट एंड क्लीन और पूरे टाइडी रूम को देखता है। तो यहाँ वो अपना जो टेबल था उसको साफ सुफ करता है, व्यवस्थित करता है। फादर इसके सरप्राइज हो जाते हैं वो देखकर कि भाई आज उनका बेटा कितने साफ सफाई से और कितना व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रख रहा है, और उसका एडमायर भी करते हैं। इसके बाद स्वामी अपनी ग्रैनी के पास जाता है, अपनी ग्रैंडमदर के पास, और उससे पूछता है ग्रैंड मदर से कि क्या आपको याद है कि वो कौन है, राजम के बारे में मैंने आपको बताया था, राजम कौन है। यहाँ पर वो ग्रैनी बोलती है हाँ हाँ वो हट्टा कट्टा सा लड़का है ना जो कभी एग्जाम पास नहीं कर पाता है। स्वामी बोलता है नहीं दादी वो तो मनी है। तो फिर दादी बोलती है कि अच्छा अच्छा हाँ मुझे याद आया, वो लड़का जिसको ग्रैनी या ऐसा कुछ बोलते हैं, छोटा सा बहुत ही होशियार सा बच्चा है। अब स्वामीनाथन थोड़ा सा वो हो जाता है, दुखी हो जाता है कि ये दादी को इतना बताओ फिर भी कुछ याद नहीं रहता है। वो बोलता है कि ग्रैनी आप पी और वो राजम में, उसमें और पी में कंफ्यूज हो रही हैं। राजम वो है जिसने शेरों को मारा था और जिसके पिता एसपी हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, और जो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। अब दादी को याद आता है, अच्छा हाँ हाँ याद आया, कहती है मुझे बड़ी खुशी, क्या वो यहाँ आ रहा है, वो यदि यहाँ आ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अब बुढ़ापे में होता है ना बेटा, बच्चों सॉरी बड़ों को, बूढ़ों को एकदम से हर चीज़ याद नहीं रहती है, और वो इतने ध्यान से बच्चों की बातें, बुत्ते तो इससे छोटे से बच्चों की बातें ध्यान से सुनते भी नहीं, और सुने तो उतना दिमाग में रखते भी नहीं है, और रखे भी तो कभी भूल भी जाते हैं। ऐसे ही कुछ दादी के साथ हो रहा था। तो अब वो स्वामी बोलता हाँ वो तो आ रहा है, लेकिन मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। तो वो बोलती है दादी कि अच्छा अच्छा तुम उसको मेरे पास लेकर आओगे, मैं तो उससे मिलना चाहूँगी। स्वामी बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से बोलता है ठीक है देखते हैं, लेकिन मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि मैं उसको आपके पास ला पाऊँगा कि नहीं मिलाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ आपको ये बतानी है कि आपको मेरे रूम में नहीं आना है जब वो मेरा फ्रेंड राजम मुझसे मिलने के लिए आए। दादी माँ पूछती है ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि बात ये है कि तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, और इतना रूडली बोलता है ना उसको, ऐसा बोलते हुए, बच्चा ही था ना वो, छोटा सा 5th क्लास के बच्चे, 4th 5th के, इतनी अकल नहीं होती, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि बड़ों को बुरा लगेगा, ये बुरा लगने वाली बात तो उनमें कुछ होती ही नहीं है। बच्चे तो हम लोग देखते हैं ना कि बस इधर कट्टी हुए इधर मिट्टी हो जाती है, इधर खेलने लग जाते हैं अपना सब भूल के, उनके मन में कोई बात नहीं रहती। तो यहाँ वो दादी को स्पष्ट रूप से बोल देता है कि तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो ना, तो तुम नहीं आना। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने फ्रेंड से वो बूढ़ी दादी को मिलवाए। ये बच्चे की मेंटेलिटी थी, अब होता है कई बच्चों को नहीं जमता है, तो उसको भी नहीं जम रहा था। दादी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, दादी ने उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा ठीक है बेटा नहीं आऊँगी।
तो ये उनके ग्रैंडसन के प्रति जो प्यार रहता है ना, दादी नानी लोगों को बहुत प्यार रहता है अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के लिए। तो वो बोलती ठीक है बेटा नहीं आऊँगी। अब समझ गई वो बच्चा है बोल रहा है, क्या इसकी बात का बुरा मानना। बड़े लोग मानते भी नहीं छोटे छोटे बच्चों का, स्पेशली दादी नानी लोग। तो यहाँ पर अब उसको ध्यान आता है कि वो फ्रेंड क्या गया था तो उसने कितने अच्छे से उसकी खातिरदारी हुई थी, उसने की थी उसकी खातिरदारी। अब वो मम्मी के पास जाता है जो सब्जी काटते हुए फर्श पर बैठी हुई थी। अब वहाँ नर्वसली बैठ जाता है और वो जो प्लेंटेन लीव्स वो काट रही थी उसको हाथ से ऐसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, अब सोच रहा है कि कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। तो बच्चे होते हैं मन में कुछ चलता रहता है और हाथ में कुछ चीज़ रही, जैसे कागज़ रहा कुछ रहा, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बिट्स ऑफ पीसेस में कर देते हैं। वैसे वो प्लेंटेन लीफ को लेके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। मम्मी खिसिया जाती है, बोलती है यहाँ कचरा मत करो, मैं बार बार झाड़ू नहीं लगाने वाली हूँ। मदर थोड़ी सी खिसिया जाती होता है, मम्मी लोग भी काम करते करते परेशान हो जाते हैं, खिसिया जाती हैं। तो अब यहाँ पर वो अपनी बात शुरू करता है कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो मम्मी बोलती है अभी कुछ सोचा नहीं है। तो वो बोलता है कि कुछ अच्छा बनाओ ना आज, और कुछ मीठा भी बनाओ, राजा मारा है आज घर पर। और वो कॉफ़ी मत बनाना, जो सड़ी सी कॉफ़ी आप मेरे को दे दिया करती हैं ठंडी सी, कुछ अच्छी गर्म सी कॉफ़ी बनाना। देखिए वो पी तो लेता था, इसके पहले तक हमने देखा वो जब झगड़ा हुआ था उसका अपने फ्रेंड्स के साथ तो वापस आया घर पर उदास मन से, अपने कॉफ़ी बस्ता फेंका और उसने वो जो कॉफ़ी गल्प की, गल्प मतलब निगल ली, तो वो थोड़ी ठंडी कुनकुनी सी कॉफ़ी थी। तो अब यहाँ वो शिकायत करता है कि वैसी मत बना लेना जैसी हर बार बना लेती हो, कुछ अच्छी हॉट सी और टेस्टी सी कॉफ़ी बनाना। अपनी मम्मी को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उसके बाद अपने कुक को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि ये ऐसी गंदी सी धोती पहन के नहीं आना मेरे रूम में, एक क्लीन धोती और क्लीन शर्ट पहन कर आना। और मम्मी से फिर पूछता है कि क्या मुझे पापा का वो जो रूम है 1 या 2 घंटे के लिए मिल सकता है क्या। तो अब मम्मी मना कर देती कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ खुद और अपने पापा से पूछो, पिताजी से अपने पूछो। उस समय पापा नहीं, उस समय पिताजी बोला जाता था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप पूछोगी तो जल्दी मिल जाएगा, पापा जल्दी से रूम दे देंगे। तो यहाँ वो फिर भी मना कर देती है। अब ये अपने फादर के पास जाता है और फादर पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो फादर को बोलता है कि मुझे आपका रूम चाहिए। अब वो पूछते हैं किस लिए चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे अपने फ्रेंड, मेरा फ्रेंड आ रहा है उसको एंटरटेन करना है। तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा फ्रेंड कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो ये बताता है हाँ वो एसपी का बेटा है, ऑर्डिनरी नहीं है। अब पापा भी समझ जाते हैं कि चलो बेटा कभी बोल रहा है तो सुन लेना चाहिए। तो वो बोलते ठीक है, लेकिन वहाँ पर टेबल में चीज़ों को अस्त व्यस्त नहीं करना, बिखराना नहीं, मैसअप नहीं करना। तो अब वो बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। अब उस दिन वो देखा कि हमने बेटा ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड पैरा स्टार्ट होगा, देखिए। ओह ही विल गिव हिम, सॉरी ही विल गिव मोर रियडली इफ यू आस्क, ओके, अप टू पुलिस एंड घोस्ट। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होगा और उसके बाद हिंदी में होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपना ये आगे जा चुका है, कोई बात नहीं, अपन सेकंड पैरा से स्टार्ट करते हैं, ओके। Yes, then he went to his father and asked for his room to entertain his rich friend, who was the son of SP. His father agreed on the condition that he would not make it dirty. Swami became very happy and made a promise also. Now Swami came to, now Rajam came to his house. Yes, and everything was going very smoothly at Swami's house. Father had given him room. Mother had prepared something good with wheat, plum and sugar. Coffee was also nice. Granny also kept her promise not to come in front of his friend. But his cook did not change his dhoti as he ordered him earlier to wear clean shirt and dhoti. Swami seated Rajan in his father's chair, revolving chair. They talked out all subjects like money here, their friend, trains, police, ghosts, etc. up to 3 hours. Okay. Yes, now explanation Hindi. बेटा यहाँ पर
स्वामी अपने पिता से वो डिमांड करता है कि वो 1 या 2 घंटे के लिए उसको रूम दे दें। पिता उससे पूछते हैं कि क्यों चाहिए, तो बताता है कि मुझे एक फ्रेंड को रिसीव करना है। फादर बोलते हैं कि तुम्हारा खुद का तो रूम है। कौन सा रूम था? वो जो उसका टेबल वगैरह था वहाँ पर। अब वो बोलता है कि मैं वो रूम उसको नहीं दिखा सकता हूँ अपने फ्रेंड को, तो राजम को। तो वो पिता पूछते हैं कि ये राजम कौन है, कोई बहुत बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति है क्या? तो वह बताता है कि वो एसपी का बेटा है और वो कोई ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति नहीं है। पिताजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मेरा रूम ले सकते हो, लेकिन उसमें अस्त व्यस्त कुछ नहीं करना, गंदगी नहीं करना। तो ये प्रॉमिस करता है कि ये केयरफुल रहेगा, अपने पिता को थोड़ा प्यार करता है और बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं पिताजी करके, दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। खुश हो जाता तो उसके पिताजी हंसने लगते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ठीक है अब जाओ तो पढ़ाई करो। अब वो भी दिन आता है जब राजम आने वाला होता है, तो राजम आता है उसके घर पर। सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। मम्मी ने भी अच्छा कुछ बनाया था, फादर ने उसको रूम दे दिया था, मम्मी ने भी कुछ अच्छे चीज़ बनाई थी, व्हीट प्लम और शुगर मिला के। कॉफ़ी भी वाकई में अच्छी थी उस दिन की। ग्रैंड माँ ने भी इनके अपना जो वादा था वो पूरी तरह से निभाया और वो राजम के सामने नहीं आई, तो अपने वो पैसेज में ही बैठी रहीं। बस एक चीज़ जो थी वो नहीं हुई थी, वो ये था कि जो उनका कुक था रसोइया, उसने अपनी धोती, गंदी सी धोती चेंज नहीं की, उसकी बात नहीं मानी। अब स्वामीनाथन अपने फ्रेंड को, राजम को, अपने पिता की रिवॉल्विंग मतलब जो मूविंग चेयर होती है ना, घूमती हुई चेयर रिवॉल्व होती है, वो चेयर पे बिठाता है और करीब 3 घंटे तक वो अपने फ्रेंड से बात करता है। फ्रेंड अपने एंजॉय कर रहे हैं वो दोनों फ्रेंड्स। वो उन्होंने सब सब्जेक्ट्स पे बात की, चाहे वो मनी उनका फ्रेंड हो, चाहे ट्रेन, चाहे पुलिस, घोस्ट, भूत प्रेत, सब दुनिया भर की, बच्चे हैं छोटे छोटे, दुनिया की बातें करेंगे, वो दुनिया की बातें करते हैं। Now see the third para, which is your room up to Granny gasp with wonder. Okay, now explanation of this para. Third, while talking, suddenly Rajam asked Swami which his room was. Swami told him that the same room was his in which they were sitting that time. Rajam was not convinced with that. He again asked if he read such law books. Now Swami tried to divert his attention from that topic. He asked Rajam if he had seen his grandmother, and Rajam denied and gave his consent by saying that he would like to see his grandmother. Swami took him to his granny. Earlier he did not want to his granny to meet Rajam, but now he was bound to take his friend to his granny to change the topic. He asked granny if she was asleep and told her that Rajam wanted to meet her. Granny also got happy and talked to him, means talked to Rajam over many topics. She asked him his mother's name, about his brothers and sisters, how many jewels his mother had, etc., etc. Rajam also took interest in talking with her. He described to her Madras, where he lived, its lighthouse, its sea, its trams, buses, cinemas, etc., everything. Granny also listened everything with wonder, as she lived only in Malgudi her whole life, and whatever Rajam told her was a marvel for her. Now explanation in Hindi. हाँ बेटा, अब बात करते करते राजम अचानक से स्वामी से पूछ लेता है कि तुम्हारा रूम कौन सा है। जैसे राजम का एक सेपरेट रूम था ना, वैसे ही इसका रूम कौन सा है। तो अब यहाँ पर स्वामीनाथन बहुत ही सीरियस फेस बना के बोलता है कि यही मेरा रूम है। क्यों, यानी क्यों पूछ रहे हो? तो राजम को थोड़ा सा ये चीज़ को निगलने में, ये बात को पचाने में टाइम लगा। उसको वो कन्विंस नहीं हुआ। वो वहाँ बुक्स थी, अब इनके पिता थे कचहरी में, कोर्ट में,
किसके? स्वामी के। तो अब वहाँ पर वो जो लॉ बुक्स रखी हुई थी, क्योंकि रूम तो उसने पिता का लिया था ना, तो लॉ बुक्स रखी हुई थी। अब वो लॉ बुक्स में देखकर राजम पूछता है कि तुम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो? जी हाँ, वो बुक्स यानी जैसे लॉ बुक्स में होती उसकी कवरिंग किनारी सुनहरी सी होती है, ऐसी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। अब स्वामीनाथन अनकंफर्टेबल फील करने लगा। ठीक है, अब राजम ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया उससे कि तुम्हारी बुक्स कहाँ है? यदि ये तुम्हारा रूम है तो तुम्हारी यहाँ पर बुक्स होनी चाहिए। तो अब राजम स्वामी बोलता है कि एक्चुअली क्या है, झूठ बोलना पड़ता है उसको, एक्चुअली क्या है, ये जो टेबल है ना, ये मेरे पिताजी का है। जब मैं बाहर होता हूँ तो वो अपने क्लाइंट से इस रूम में मिलते हैं। यहाँ उन्हें पूरी तरह से झूठ बोल दिया, जबकि उल्टा था, है ना। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को लेकर आ रहा था, रूम पिताजी का था, लेकिन ये उल्टा बताता है, बोलता है रूम मेरा है और मेरे पिताजी यहाँ अपने क्लाइंट्स को बुलाकर उनसे मीटिंग करते हैं। तो अब वो पूछता है फिर से राजम की सुई उसी बात पे अटकी हुई है। वो बोलता है कि लेकिन तुम अपनी बुक्स फिर रखते कहाँ हो? तुम्हारी बुक्स तो होनी चाहिए ना यहाँ पर। पिताजी ठीक है तुम्हारे मिलते हैं यहाँ पर अपने क्लाइंट से, तो तुम्हारी बुक्स तो होना चाहिए थी, तुम्हारा रूम है तो स्वामीनाथन अब क्या करे? अब उसको झूठ पे झूठ बोलते नहीं बन रहा है। तो अब वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए क्या बोलता है कि तुम मेरी दादी से मिले हो क्या? अब वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसके दिमाग से बात राजम की निकल जाएगी, तो इसीलिए तो वो राजम बोलता है नहीं, मैं तो नहीं मिला हूँ, और मुझे मिलना अच्छा लगेगा यदि तुम मिलाना चाहो तो अपनी दादी से। अब स्वामीनाथन दौड़कर अपनी दादी के पास जाता है और प्रे करता है कि काश वो सोई हुई हो और मैं इसको बोल दूं कि दादी सोई हुई है, क्योंकि वो मिलाना ही नहीं चाहता था ना, वो बहुत बूढ़ी हो गई तो उसको लगता था कि नहीं मिलाना चाहिए। तो अब वो जैसे ही जाता है दादी के पास उधर देखने के लिए पैसेज में, तो दादी माँ तो अपनी बैठी हुई थी बेड पर। अब वो बोलता है कि उसको देखती तो पूछती है क्या है बेटा, कुछ चाहिए? तो वो बोलता है कि दादी आप अब तक सोई नहीं, राजम आपसे मिलना चाहता है। तो अब वो दादी बड़ी खुश होती है कि ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अब ग्रैनी बहुत खुशी के मारे चिल्लाती है राजम को, राजम भी आ चुका वहाँ पर पास में, तो राजम को अपने पास बुलाती है और उसको बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती है। अब बोलती है कि बेटा मैं तुमको देख नहीं सकती हूँ, काफ़ी बूढ़ी और अंधी भी हो रही हूँ। अब ये बात सुनते ही स्वामी को फिर गुस्सा आता है कि ये ज़रूरत क्या थी दादी माँ को बोलने की कि बूढ़ी हो गई हूँ, ब्लाइंड हो गई हूँ, ये चुप नहीं रह सकती थी क्या दादी? और इसी वजह से वो अपनी दादी को मिलाना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े लोग ज़्यादा ही बात करते हैं तो ये कई बच्चों को नहीं पसंद आता, तो ऐसे ही स्वामी को था, तो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। पर राजम सिंपली उनकी बात का जवाब देता है, उसके पास बेड पे बैठता है और दादी माँ से ढेर सारी बातें करता है, और उसको भी खुशी होती दादी माँ से बात करते हुए। दादी माँ उससे के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, सिस्टर्स के बारे में और दुनिया की बातें पूछती हैं, मम्मी के पास कितनी ज्वेलरी है, और वो भी बड़े मज़े से आंसर देता है। छोटा तो वो भी था ही, दादी के पास बैठ के दादी को अपने मद्रास की, वहाँ के लाइट हाउस और वहाँ के समुद्र की सब बातें बताता है। अब चूंकि दादी का पूरा समय या पूरा जीवन मालगुडी के छोटे से गांव में ही बीता था, उन्होंने तो कभी बड़े शहर को देखा नहीं, इसलिए उनके लिए तो ये सब चीज़ें सरप्राइज वाली थी, और वो बहुत ध्यान से और बड़े चाव से उस बच्चे की बातें राजम की सुन रही थी। ठीक है, यस। नाउ पैरा नंबर 4 from when Swaminathan entered the class up to Somo followed him with Shankar. Explanation now first in English. Now here the scene changes. Okay, the scene changes. It is the scene of the school and class. When Swami came to school and reached the class, a laughter went around the benches. He supposed that the laughter might not be for him, but all the students continued laughing. He saw that on the blackboard, tail, T-A-I-L, tail was written in bold letters, huge letters. He became very angry. He walked to the blackboard and rubbed it off with his hands. He turned and saw Shankar's head bent over his notebook, and the P was busy unpacking his satchel. Satchel means bag, school bag. Swami doubted on them that they might have written tail on the blackboard. He slapped P on his neck. P started crying. Swami slapped Shankar also, who was busy in some work.
Soon there was a big fight between Shankar, Swami and P. They were rolling over, tearing, scratching and kicking one another. The bell rang. Rajan, Somu and Mani came into the class. The teacher also came into the class and make them quiet. Somu and Mani separated the fighters. Means uh, Somu, Shankar and Samuel. Somu requested the teacher to let them go out as they did not want to disturb the class. The teacher hesitated, but Mani and all had already went out without waiting for teacher's permission. बेटा यहाँ सीन चेंज होता है. इसके पहले का देखा कि राजम का विजिट जो था स्वामी के घर का, लेकिन अब यहाँ सीन चेंज हुआ. अब ये स्कूल का सीन हो गया है. अब स्वामीनाथन स्कूल जा रहा है दूसरे शायद मंडे की बात, यस मंडे हो गया है ना, सैटरडे को आया था ना राजम. तो अब ये जैसे ही क्लास में एंट्री करता है तो एक गीगल मीन्स लाफ्टर, हंसी बेंचेस से, यानी बच्चे हंसने लगते हैं. अब वो सीट की ओर जाता है अपने और ये उम्मीद करता है कि वो हंसी का पात्र वो ना हो, लेकिन हंसी शुरू ही थी. वो बच्चे कैसे, अब कुछ चीज़ ऐसी फनी सी होती है और किसी के लिए होती है तो वो उसको जैसे ही वो आया तो हंसना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे बच्चे. तो अब यहाँ पर ऐसी था, उसने चारों ओर देखा मनी ने, स्वामी ने. अब उसकी आंखें ठहर गई घूमते हुए, पूरी क्लास से घूमते हुए ब्लैक बोर्ड पे. अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया. ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, TAIL, टेल. टेल मतलब उस समय वो शायद हिंदी में दुम या पूंछ या कुछ ऐसा लिखा होगा. स्वामीनाथन बोर्ड तक जाता है और वहाँ अपने हाथों से वो टेल को मिटा देता है. अब स्वामीनाथन क्यों मिटाता है? क्योंकि उसको पता था, उसको पहले ही उसके फ्रेंड ने बता दिया था कि तुमको एक नया नाम टेल मिला है, राजम की टेल. तो अब वो समझ गया उसी के लिए लिखा है. अब वो एकदम गुस्से में आ जाता है, पलटता है और शंकर को देखता है. तो वो शंकर अपने नोटबुक पे झुका हुआ था और पी अपने जो बैग है उसको, अब स्कूल शुरू हुआ है तो बैग जो है स्कूल बैग वो खोल रहा था. कुछ भी बोले बिना स्वामीनाथन पी के पास पहुंचता है और उसके गाल पे एक तमाचा मारता है. पी रोने लगता है और कसम खा के बोलता है कि ये मैंने नहीं लिखा हूँ. तो अब जो स्वामी है वो शंकर की तरफ देखता है जो किसी काम में बिजी था. अब वहाँ जाता है, उसके भी चेहरे पे एक झापड़ मारता है. तो अब वहाँ पर तुरंत उसी वक्त एकदम मारपीट शुरू हो जाती है उन बच्चों में, शंकर, स्वामीनाथन और पी में. एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते, फाड़ते हुए, स्क्रैच करते हुए, एक दूसरे को नोचते हुए, लात घुसे और नहीं इस टाइप से समझो आप. इमेजिन करो कि वो लड़ाई शुरू हो गई तीनों में. बेल बजती है, टीचर के आने का समय हो गया. तो उसी समय राजम, सोमू और मनी भी आते हैं क्लास के अंदर. टीचर भी आते हैं. टीचर बहुत चक्के रह जाते हैं कि भैया ये यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये लड़ाई मची हुई है. तो अब वो जोर से चिल्लाते हैं टीचर जो आते हैं. तो सोमू और मनी क्या करते हैं, जो ये फाइट कर रहे थे तीनों, इनको अलग करते हैं. टीचर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, अपनी सीट पे बैठता है और क्लास को चुप कराते हैं. सोमू सर से बोलता है कि सर हमें बाहर जाने की इजाज़त दीजिए, अनुमति, हम यहाँ क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं. अब वो सर काहे के लिए आपको अनुमति देंगे, क्लास लेने आए हैं. तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, उनकी परमिशन के बिना ही, पहले ऐसा ही होता था, वो भाग लेते थे बच्चे. तो ये सबके सब निकल जाते हैं क्लास से बाहर. अब यहाँ पर बेटा देखिए 5th पैरा है. फ्रॉम दे केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड अप टू लास्ट एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड. Yes, explanation in English first of all. They all came to a separate spot in the field near the school. Mani asked Shankar and P what was wrong with them. They started speaking and blaming each other at once. They started quarreling with one another again in the field. Mani covered their mouths with his hands and asked them what was a tale, as he did not know about it till then. Swami cleared that they all called him Rajam's tale. Mani scolded and roared, who dared to talk of Rajam there? Somu challenged Mani. If they had done that, what would Mani do? Somu challenged Mani's strength.
Money got angry and he swung his hand, brought it down on Somu's neck. NAP, nape means neck. Somu sided it away with a heavy blow. Money kicked Somu, but he saved himself by stepping aside and gave one kick back to Money. The three youngsters means Swami, Shankar and P couldn't believe their eyes that Somu and Money were fighting. They couldn't understand what to do. They thought they both must be killing each other. They looked blaming at one another. Ki this is because of you, this is because of you, like that. And they ran towards the school to call someone to stop the fighting. There, in front of their HM was there. They started telling with difficulty that in the nearby field 2 murders were being committed at that time. At first the HM felt laughing, but when he saw the serious faces of those boys, he felt the seriousness of the situation and went to see in the field with a peon. There he saw that the fighters means Somu and Money were rolling everywhere in the field. The HM and the peon parted them, and Swami was thinking that the strength that Somu and Money possessed was not possessed by anyone in the world. Means, in his opinion, they both were stronger than any other in the world. Okay, now explanation in Hindi. अब बेटा ये लोग परमिशन लिए बिना ही क्लास से निकल के आते हैं और एक जो लोनली स्पॉट था बाजू के स्कूल के बाजू में जो खेत था वहाँ पर जो एक सुनसान जगह थी वहाँ पे सबके सब आते हैं और मनी पूछता है उन बच्चों से कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया है, क्यों लड़ रहे हो। तो अब तीनों के तीनों जो लड़ रहे थे वो तीनों एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे होता है ना, बच्चों को एक को पूछो तो कोई पूरे नहीं इसने मुझे मारा, नहीं इसने मुझे मारा, यानी एक दूसरे की बात काट के और किसी की सही से समझ में आती ही नहीं है। तीनों के तीनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मनी को आखिर उनको मुंह दबा के उनको तीनों का चुप कराना पड़ता है और पूछता है कि ये बताओ ये टेल वाली बात क्या है, ये क्या चीज़ है टेल। तो अब वहाँ पर स्वामीनाथन सुबकते हुए बोलता है कि ये लोग मुझे राजम का दुम या राजम की दुम या राजम का दुम छल्ला या टेल बोलते हैं। तो अब यहाँ मनी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पर राजम के बारे में बात करने की हिम्मत किसकी हो रही है। अब पहले तो मनी और राजम की दुश्मनी थी, लेकिन अब राजम से दोस्ती हो गई है। तो मनी बोलता है कि ये राजम के बारे में कौन बोल रहा है उटपटांग सा। तो सोमू बोलता है हिम्मत किसमें। अब यहाँ पर वो सोमू मनी को चैलेंज कर देता है एक तरह से। तो अब वो मनी उसको डपटता है कि यदि किसी ने भी उसके बारे में कुछ कहा तो सोमू बोलता है कि हाँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, कर भी लिया उसके बारे में बात। तो अब यहाँ सोमू और मनी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये जो बच्चे 3 लड़ रहे थे ना, जिनको बचा के ये मनी और सोमू लेकर आए थे, अब इन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। तो अब मनी ये बहसबाजी में मनी अपने एक हाथ मारता है सोमू के गर्दन पे, लेकिन सोमू उसको अपने हाथ के जोरदार झटके से साइड में कर देता है और खुद को बचा लेता है। अब मनी उसको किक मारने देखता है सोमू को, तो सोमू वो भी बच जाता है, साइड हट जाता है और एक किक मनी को मार देता है। अब यहाँ पर वो जो तीनों लड़ रहे थे सोमू, स्वामी और शंकर, वो तो रह गए साइड में और यहाँ लड़ाई शुरू हो गई किसकी, मनी और सोमू की। जो बीच बचाव करने आए थे वही लड़ने लग गए। तो अब ये तीनों यंगस्टर जो थे वो अब अपनी आइज़ पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे, आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, मनी और सोमू लड़ाई कर रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनको तो लगा थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को तो मार डालेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे पे गुत्थम गुत्था होते हैं, पूरे खेत भर में मनी और सोमू लड़ाई कर रहे थे। अब ये तीनों एक दूसरे को बोलते हैं देखो तुम्हारी वजह से हुआ, वो दूसरा यानी इस नज़र से देख रहे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारी वजह से हुआ। और ऐसा देखते देखते वो लोग स्कूल की तरफ भागते हैं।
हेडमास्टर के पास जाते हैं और मुश्किल से बता पाते हैं कि बाजू के खेत में 2 मर्डर होने जा रहे हैं। अब पहली बार तो सुन के वो प्रिंसिपल को हंसी आती है और किसी को भी आएगी, बच्चे ऐसा आके बोलेंगे कि देखो वो बाजू के खेत में 2 मर्डर होने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर उनको हंसी आती है। लेकिन जब बच्चों के सीरियस फेस को देखता है तो उनको भी सिचुएशन समझ में आती है। पियून को बुलाते हैं और पियून को लेके वो हेडमास्टर खेत की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो फाइटर्स मतलब मनी और सोमू एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पूरे खेत भर में लड़ाई कर रहे थे। हेडमास्टर और पियून उनको आसानी से अलग कर पाते हैं, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही थे ना, इतने बड़े नहीं थे, उन लोग से तो छोटे ही थे। और उनको अलग कर पाते हैं और स्वामीनाथन ये सोच रहा है कि भाई दुनिया में इन दोनों से ताकतवर तो कोई होगा ही नहीं, जिस हिसाब से लड़ाई कर रहे थे। क्योंकि स्वामी तो सपने में भी ऐसी लड़ाई की नहीं सोच सकता। हमने पहले ही देखा वो टिमिड टाइप का, डरपोक टाइप का, सहमा वाला कैरेक्टर वाला बच्चा था। तो वो इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखता है तो बोलता है बाप रे, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं, ये दोनों में तो बहुत शक्ति भरी है, ऐसा वो सोचता है। तो बेटा यहाँ पर हमने फादर्स रूम में ये चीज़ें देखी, जो 2 सीन्स थे, समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अ फ्रेंड इन नीड। ओके, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।